ओके सर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एंड गुड मॉर्निंग। नमस्ते ऑल बीएमसी के ऑफिसरान। प्यारे दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट important part of the English grammar. Friends, if we want to improve our English, so there are so many things by which we can learn English. Suppose parts of speech. Within parts of speech, there are the 8 parts of speech. That is not our topic today. Just I am taking one point. Sentences, and after that tenses. So today, my friends, we are going to learn tenses, which is very important. Tenses in grammar is a category that expresses time. Tenses that expresses time. And it with reference to the moment of speaking. Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation patterns. The main tenses found in many languages include the past tense, present tense, and future tense. It origins Latin word tempus, means time. Here we can see all these things. But friend, here I would like to tell you the foremost important thing about the tense. We can see tenses here. This is our main topic today, tenses. Okay? And tenses have 3 sons: future tense, past tense, and present tense. Okay, friends? See here, the circle here, we consider it as a present tense. As a present tense. And the left side of the circle, we consider it as a future tense. And the left side of the circle, we consider it as a past tense. So, and each of these tenses has their 4 sons. For example, indefinite. Indefinite. In other words, we can call it simple. Simple tense. Second one is continuous tense. Third one is perfect tense. And fourth one is perfect continuous tense. Now see friend, we consider tenses as a grandfather here. Okay? जैसे एक फैमिली होती है, उसमें ग्रैंडफादर होता है, फादर होता है, उसके बच्चे होते हैं,
बिल्कुल उसी तरीके से हम टेंसेस को यहां पर ग्रैंडफादर के तौर पे लेते हैं। GF मीन्स ग्रैंडफादर, एंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये इसके 3 बच्चे हैं। देयर आर 3 सन्स ऑफ द टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, and each of these 3 tenses has their 4 sons. One is indefinite simple tense, second one is continuous tense, and third one is perfect tense, and fourth one is perfect continuous tense. Okay friends, now we will see it one by one. इफ यू वांट टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, अगर अपनी इंग्लिश को हम और अच्छी सुधारना चाहते हैं, वी कैन, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न these types of the tenses. So now we got the family of the tenses. Can you tell me anybody? Tenses is a grandfather, and tenses have 3 sons, present tense, past tense, future tense, and after that each of these 3 main tenses have their 4 sons: indefinite simple tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. Now we understand the family of the tense. Now we will take it one by one. Okay friend, one more thing I would like to tell you. You can have your notebook with you and pen. Notebook and pen. You can simultaneously note down all these important points, whatever you are going to understand. Okay? जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो दोस्तों। अपनी पेन और कॉपी आप साथ में लेकर बैठिए प्लीज, है ना। जो पॉइंट आपको समझ में आएगा उसको आप लिखते भी जाइए और ध्यान से सुनते भी जाइए, समझते भी जाइए। अभी आपको बहुत मजा भी आने वाला है, आपको बहुत इंजॉय करेंगे और आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप सीख भी लेंगे। वेरी गुड। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। देखिए कुछ बच्चों ने नोटबुक भी लेके आई, पेन भी लेके आई, शाबाश। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टेंस से। अब हमारा पहला टेंस क्या है? पहला टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट को हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके फ्रेंड्स, इनडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको इसकी मैं पहचान भी बताता चलूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है ता, ती और ते, इसके साथ है, हूं, है। ओके दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको ये सारे टेंसेस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली ऑल दीज टेंसेस in a very easy manner. Now see, I will give you here the structure. Structure. Structure means what, friends? Structure means formula. Formula. Structure means formula. Now what is the formula of the first tense, simple present tense or indefinite tense? Subject plus verb first form प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, साथ ही साथ में अब इसको इस टेंस का मैं
मतलब भी बताता चलूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जमाने हाल सादा, जमाने हाल सादा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं, वो सेब खाती है, वो फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम समझते हैं इंग्लिश में, और इस तरह टाइप के आप हजारों सेंटेंस की प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यू मस्ट पे योर अटेंशन हियर। नाउ सी, आई गो टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, और स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, क्यों इसको इनडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस कहा जाता है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर हमें टाइम नहीं पता चल रहा है। हमारा मकसद क्या है, टेंसेस को समझना। टेंसेस का मतलब क्या है, टाइम। ओके, तो टाइम का मतलब क्या है कि जिस सेंटेंस में हमको टाइम समझ में आए कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में टाइम कौन सा दिया हुआ है। तो क्या कोई बता सकता है मुझे कि आई गो टू स्कूल में कौन सा टाइम दिया हुआ है ना? जस्ट आप अंडरस्टैंड करो, आप अंडरस्टैंड करो, समझने लगो। बाद में मैं आपसे बातचीत भी करूंगा और आपसे पूछूंगा भी, आप उस वक्त मुझे बताइएगा। लेकिन यहां पर अब मैं आपको टाइम बता रहा हूं कि देखिए, आई गो टू स्कूल, भाई वो स्कूल तो जाता है, लेकिन कौन से टाइम जाता है? सुबह जाता है, दोपहर में जाता है, शाम में जाता है। इधर इज गोइंग इन मॉर्निंग, in afternoon, in the evening, in the night, what time he is going to the school. So it is indefinite here situation. The time is not mentioned here, so it is called indefinite simple present tense. इसमें देखिए दोस्तों, मैं एक टाइप और बताता चलूं कि ये जो हमारा हो गया इनडेफिनाइट हो गया, है ना, इसमें हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा टाइम है। लेकिन एक सेंटेंस और होता है जो कि ट्रुथ पर बेस्ड होता है। ट्रुथ, ट्रुथ किसे कहते हैं दोस्तों? ट्रुथ कहते हैं सच्चाई को, सच को, है ना। मैं अभी बाकी के सेंटेंसेस को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये हमारा टेंस क्या है, टाइमिंग क्या होता है, वो समझा रहा हूं। अब जैसे ट्रुथ के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन सेंटेंस है हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या इनडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहां पर इसमें ट्रूथ है। ट्रूथ कौन सा है दोस्तों? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब ये हकीकत है, इट इज अ रियलिटी। द सन, सूरज जो है, राइजेस, सूरज हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइजेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, और इन द ईस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है मशरिक से निकलता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
अराउंड दी सन। देखिए दोस्तों, द अर्थ हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रिवॉल्व्स हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, अराउंड द सन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों इन दो सेंटेंस में मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया है, जो दुनिया की सच्चाई है, दुनिया की हकीकत है। हम जानते हैं, हर कोई जानता है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंटरनेशनल सच्चाई है कि हाँ, सूरज तो मशरिक से ही निकलता है और धरती जो है, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है गर्दिश करती है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको इनडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया और द नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में भी दो एग्जांपल्स यहां पर मैंने आपको बता दी, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। अब इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं यहां पर वापस से इस पहले सेंटेंस पर जाता हूं। ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे हाथ उठा के सिर्फ बताइए ऐसे। यस, वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, समझ रहा हूं। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। अब देखिए, मैं पहले सेंटेंस पे वापस जा रहा हूं यहां पे। बहुत अच्छे। अब देखिए, यहां पे मैंने आपको क्या बताया, आई गो टू स्कूल, है ना दोस्तों? तो इसमें ये सेंटेंस जो हो गया, ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। इसी सेंटेंस को दोस्तों आप अफर्मेटिव का सेंटेंस भी कह सकते हो, अफर्मेटिव। ठीक है दोस्तों, ये हमको यहाँ पे टाइम नहीं पता चल रहा है, इसमें टाइम लाइन क्या है हमें पता ही नहीं चल रहा है। जैसे टाइम लाइन के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको, ये जो सर्कल है इसको हम प्रेजेंट टेंस कंसीडर कर रहे हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द सर्कल है उसको हम पास्ट टेंस कंसीडर कर रहे हैं और राइट साइड ऑफ द सर्कल जो है हम इसको फ्यूचर टेंस कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में हमको ना लेफ्ट साइड समझ में आ रहा है ना राइट साइड समझ में आ रहा है, लेकिन सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अब अगर मैं इसको निगेटिव बनाऊं इस सेंटेंस, तो कैसे बन जाएगा दोस्तों, आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए दोस्तों, सेंटेंस कैसा हो गया अभी, ये अफर्मेटिव है ना, इसमें टाइम का समझ में नहीं आ रहा है, इनडेफिनाइट टाइम है। अब इसको हमने अगर निगेटिव बनाया है यहां पर, तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है, निगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। यहां बता रहा है मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन कौन से टाइम पे जाता हूं नहीं मालूम। अब इसका अगर हमने निगेटिव बना लिया, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, भैया कौन से टाइम पे नहीं जाता, संडे को नहीं जाता, मंडे को नहीं जाता, फ्राइडे को नहीं जाता, या कोई दिन नहीं जाता है, या रेगुलरली नहीं जाता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, हम इसको यहाँ पे ये भी मान ले, रेगुलरली, रेगुलरली रोजाना जाता हूं, लेकिन कब जाता हूं, कौन से टाइम जाता हूं, वो टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना देंगे तो वो भी बन जाएगा इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव, बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे सारे टेंसेस, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव, है ना। तो अब जैसे यहां पर मैंने निगेटिव में आई डू नॉट गो टू स्कूल से मैंने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला, ठीक है। तो हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, ये इस साइड में आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है हमारा इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका। और ये जो नॉट है बीच में से निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा, डू आई गो टू स्कूल, देखिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू आई गो टू स्कूल, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर अफर्मेटिव हो गया, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया। और यहाँ पर हमें इनडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो भी समझने के लिए मिल गया। समझ में आया दोस्तों आपको? वेरी गुड। अब देखिए, इसी में मैं आपको दूसरी काइंड बताता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने पहचान आपको क्या बताई दोस्तों, ता ती ते और है हूं है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जमाना हाल सादा, मतलब ऐसे सेंटेंस है जिसमें ता ते ती आएगा और है हूं है आएगा। अब हम आपस में अपने माइंड में या जहां आप बैठे हुए हैं वहीं पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, वो आती है, वो खेलती है, वो पढ़ती है, वो देखती है, वो सोती है, वो नाचती है ना। वो सब क्रिकेट खेलते हैं, वो सब फुटबॉल खेलते हैं, वो और वो सब किताबें पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। तो देखिए हर एक चीज के ऊपर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है, वो सेब खाती है। मैं अब इसको मिटा दूं दोस्तों, should I rub it out this first sentence here? Okay. Now, the second sentence, वो सेब खाती है। She eats an apple. She eats an apple. ठीक है। शी सब्जेक्ट हो गया, ईट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, एन एप्पल जो हो गया वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अब यहां पर हमको अगर टाइमलाइन लेना है इस सेंटेंस के अंदर, सो व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ दिस सेंटेंस? यहां भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, इनडेफिनिट है। शी ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाती है, ये सच्चाई है, लेकिन कौन से टाइम खाती है? सुबह के टाइम खाती है, दोपहर में खाती है, रात में खाती है, शाम में खाती है, कब खाती है? समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसका टाइम लाइन जो है पास्ट टेंस में भी नहीं आ रहा है, फ्यूचर टेंस में भी नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। टाइम लाइन समझ में आ रहे हैं दोस्तों? हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये हो गया। अब अगर यहां पर ये सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव कंसीडर किया है तो इसका निगेटिव क्या बनेगा? शी, देखिए यहां मैंने इसको अफर्मेटिव बनाया, यहां अब इसको मैं निगेटिव बना रहा हूं। शी डज नॉट eat an apple. She does not eat an apple. ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर पहले सेंटेंस में मैंने डू का इस्तेमाल किया था, डू नॉट, है ना। और इसके अंदर मैं डस का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि पहला जो सेंटेंस था, पहला जो टेंस था, उसमें मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का यूज किया था, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, आई है ना, आई गो टू स्कूल, तो आई के साथ डू आता है। और उसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे शी का, तो शी के साथ जो आएगा डज आएगा। ठीक है दोस्तों। तो शी डज नॉट ईट एन एप्पल। अब अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बना देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा दोस्तों? देखिए हेल्पिंग ऑफ जो है डज ये पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चले जाएगा, नॉट हट जाएगा, है ना। तो हो जाएगा डज शी eat an apple? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इन तमाम सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। अब वो फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको ओरली बताता हूं। यहाँ पर वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, दे प्ले फुटबॉल। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? फुटबॉल तो खेलते हैं, लेकिन कौन से टाइम पे खेलते हैं? यहाँ पे आपको देखिए टाइम लाइन के अंदर बताता हूं। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, तो लेकिन कब खेलते हैं? पास्ट टेंस में समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर टेंस में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट खेलते हैं, तो हम यहाँ पर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेते हैं। तो इसका भी इसी तरीके से बनेगा, दे प्ले फुटबॉल का दे, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। और अगर इसको हम इसको हम अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू दे प्ले फुटबॉल, इस तरीके से आएगा। ठीक है। यहां पर आपको मैं एक स्मॉल सब्जेक्ट और वर्ब की कंडीशन बताता हूं, फिर अगले टेंस के ऊपर हम जाएंगे ताकि आपको और तफसील से उसके बारे में
समझ में आए। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट जो अपने होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसके बाहर से तो पूरी दुनिया में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, एक्शन। एक्शन डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई, आई जो हो गया, वी है ना, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम। एनी नेम मतलब कोई भी नाम, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सलीम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें आई जो हो गया ना, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो इसके साथ जो है वो डू आता है। वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वी क्या है, ये प्लूरल में है ना। और ये जो है आई जो है ये सिंगुलर में है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये और यू, तो इन सब के साथ जो है दोस्तों डोंट लगता है। इवन दे जो हमारा है, दे के साथ भी जो है डोंट डू लगता है। और ही शी इट और एनी नेम, इसके साथ जो है ये हमारे जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या ये सब हमारे थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके साथ जो है वो डज लगता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जैसे वेंट, एट, है ना, तो इसके साथ जो है डिड लगता है दोस्तों। इतनी चीज को आप समझ लीजिए पहले कि सब्जेक्ट के अंदर जो है आई, वी, ये जो है फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन आई जो है सिंगुलर है और वी जो है प्लूरल है और यू जो है सेकंड पर्सन है ना। तो इन सब और दे, इन सब के साथ डू लगता है। ही शी इट और एनी नेम के साथ जो है डज लगता है। और वर्ब सेकंड फॉर्म रहेगा तो इसके साथ डिड लगेगा। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में वर्ब बताता हूं, वर्ब क्या है कैसे है। देखिए यहाँ पर हम जितने भी टेंसेस देखेंगे इसमें इतने ही वर्ब हमको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल V1, V1 क्या हो गया हमारा, ये बेस फॉर्म हो गया दोस्तों। V1 जो हो गया हमारा ये बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म है ना। V2 सेकंड होता है, V2, V2 मतलब पास्ट फॉर्म। उसके बाद होता है V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा जो होता है VS होता है और ES होता है। एक वर्ब और होता है दोस्तों VING, वर्ब के अंदर ING। अब दोस्तों यहां पर हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम लेते हैं यहाँ पे प्ले, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म वर्ब का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस का, ये हो जाएगा प्लेड, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी इसका जो हो जाएगा प्लेड हो जाएगा। VS के अंदर कैसे हो जाएगा, VS और ES के अंदर प्लेज, ठीक है। और VING के अंदर आप समझ ही गए होंगे प्लेइंग, प्लेइंग। दोस्तों वर्ब की 5 कंडीशन समझ में आ रही है आपको, हाथ उठा के बताइए इस तरीके से। गुड, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तो वर्ब की 5 कंडीशन समझ में आ गई आपको। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे
V1 के अंदर हम लेते हैं गो, ठीक है। V2 में क्या हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा दोस्तों। V3 में क्या हो जाएगा, गॉन। और VS में क्या हो जाएगा, गोज। देखिए जैसे यहां पर वर्ब के अंदर मैंने सिर्फ एस का यूज किया था दोस्तों, है ना, लेकिन ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर मैंने एस और ईएस के यूज में मैंने यहां पर ईएस का यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके के भी वर्ब बनते हैं। और यहां पर क्या बन जाएगा, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए हमने इन सब्जेक्ट को भी समझ लिया, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, और बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब के यूजेस 5 टाइप के, 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ये हमने यहां पर इसको समझ लिया। चलिए अब दोस्तों, जैसे कि हमने यहां पर पहला टेंस लिया इनडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब उसके बाद इसकी हम अगली कड़ी देखते हैं, उसके सिबलिंग को देखते हैं, उसके दूसरे भाई को देखते हैं, ठीक है। चल यहां पर इसको हम रब करते हैं। अब यहां पर इनडेफिनाइट हट जाएगा दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा, एक टाइप हमने इसकी पहले देख लिए, अब यहां पर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। यहां पर हमने आपको इसकी पहचान बताई थी, पहले टेंस की जमाना है हाल सादा। अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी पहचान है जमाने हाल जारी, ओके। अब इसकी पहचान क्या है दोस्तों, रहा पहचान, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पहचान। अब इसकी पहचान क्या है, रहा, रही और रहे, और लास्ट में क्या है, है और हैं। देखिए ये इसकी पहचान होगी दोस्तों। अब इसका स्ट्रक्चर बताता चलो मैं आपको दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। स्ट्रक्चर मींस फॉर्मूला ऑफ मेकिंग द टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है बी की शक्ल में होता है, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इस हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस के अंदर एम, इज और आर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों ये इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला। अब देखिए इसके अंदर इसकी पहचान भी मैंने आपको बताई, रहा, रही, रहे, हूं, है, हैं। जैसे कि पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप के सेंटेंस देखे थे, इसमें भी मैं आपको 3 टाइप के सेंटेंस बताता हूं, जिससे कि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस वो, अब देखिए दोस्तों यहां पर आप अपनी मर्जी से, पहले में हमने क्या किया था कि उसको सेब खिलाया था ना, यहां पर आप उसको हम मैंगो खिला देते हैं, ठीक है। पहले लड़की को खिलाया था, अब हम लड़के को खिला देते हैं, चीज तो वही लिखनी है, सिर्फ इंग्लिश में चेंज होगा वो। चलो, वो आम खा रहा है। तीसरा, पहले में देखिए हमने उन सबको फुटबॉल खिलाया था, अब इसमें उन सबको हम लोग जो है क्रिकेट खिला देते हैं, क्रिकेट का खेल।
वो क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए सेंटेंस के अंदर रहा भी आ गया, हूं भी आ गया, रहा भी आ गया, है भी आ गया, रहे भी आ गया और है भी आ गया, है ना। तो अब यहां पर हम पहले सेंटेंस को लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ या बी की शक्ल, एम जो इसको डिनोट करता है, एम इज आर सेंटेंस के हिसाब से और टेंसेस के हिसाब से। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए आई हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर लिया, एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। गोइंग जो हो गया, इसमें से गो जो हो गया ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस इसके अंदर हमने आईएनजी का इस्तेमाल कर लिया, और टू स्कूल जो ये है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मैं इस सेंटेंस में आपको इसका टाइमलाइन बताता हूं। इसका टाइमलाइन क्या है कि देखिए, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम प्रेजेंट टेंस समझते हैं ना, प्रेजेंट टेंस समझते हैं। और राइट साइड को हम क्या समझते हैं बताइए? देखिए ऊपर मैंने बताया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और लेफ्ट साइड को हम क्या समझेंगे? पास्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। अब इस सेंटेंस के अंदर बताइए कौन सा टाइम आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ रहा है, मींस एक्शन इज गोइंग ऑन। उसका एक्शन जो है वो चल रहा है, मतलब वो अभी जा रहा है। अब वो किस टाइम जा रहा है वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक्शन कौन सा बता रहा है वो, कि काम इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन। तो यहां पर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टाइम देते हैं। जैसे मैंने यहां बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को आप दोस्तों प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों एक ही होते हैं। तो यहां पर आपको देखिए टाइम लाइन भी समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया। अब अगर देखिए इस सेंटेंस को, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में किस तरीके से हो जाएगा ये, कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई, ये निगेटिव में है ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके दोस्तों, तो यहां पर हो गया ये इसका निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें मैंने आप नॉट का इस्तेमाल किया, निगेटिव हो गया। अब अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब सवालिया जुमला बनाते हैं, तो सवालिया जुमला किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, कि इसमें से देखिए जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, हेल्पिंग ऑफ पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, नॉट हट जाएगा, निगेटिव हट जाएगा, है ना। तो कैसा हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, कि एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड टाइप में बता, वो आम खा रहा है, तो कैसे बनेगा? पहले हमने लड़की को आम खिलाया था, अब लड़के को आम खिला रहे हैं, तो वो आम खा रहा है, ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? गुड, ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब यहां पर ही जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, चलो मैं आपको लिख के भी बताता हूं।
ये वाला, वो आम खा रहा है, ही इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है दोस्तों, ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे, इसका टाइमलाइन क्या हो गया कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हमने टाइमलाइन बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन जो है वो पास्ट टेंस में नहीं हो रहा है, ना एक्शन जो है फ्यूचर टेंस में हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो मैंने ये टाइमलाइन बताया है, सर्कल को प्रेजेंट टेंस से कंसीडर किए हैं, राइट साइड ऑफ द सर्कल फ्यूचर टेंस है, लेफ्ट साइड ऑफ द सर्कल जो है वो पास्ट टेंस का है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो काम एक्शन उसका चल रहा है, टाइम चल रहा है अभी, वो मैंगो खा रहा है, खा रहा था नहीं बोल रहा है। अगर वो खा रहा था बोलता तो एक्शन उसका पास्ट में होता इस साइड में, लेकिन यहाँ हमको टाइम क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, वो पास्ट में नहीं खा रहा है, पास्ट में नहीं खा रहा था, वो प्रेजेंट में खा रहा है, और वो खाएगा, फ्यूचर का भी समझ में नहीं आ रहा है। तो साबित क्या हुआ, इस सेंटेंस का टाइमलाइन हमको, सेंटेंस का टाइमलाइन ये हो गया कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, अब आपको टाइम तो समझ में आ गया इसका। अब इसको हम जब हम निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, देखिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया, सिर्फ हमने बीच में नॉट लगा दिया तो निगेटिव हो गया दोस्तों। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में करेंगे, ये अफर्मेटिव हो गया हमारा, ये हमारा निगेटिव हो गया, और यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो इसमें नॉट खत्म हो जाएगा। जैसे फार्मूला मैंने बताया, इस पहली पोजीशन पे आ जाएगा सब्जेक्ट की, और ही जो है सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा हेल्पिंग ऑफ की। ये जो है क्वेश्चन बनाने का तरीका है। तो हो जाएगा ये, इज ही ईटिंग अ मैंगो, क्या वो मैंगो खा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस भी आएगा, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहचान में रहा, रही, रहे, हूं, है, इसलिए मैं आपको तीन एग्जांपल्स बता रहा हूं दोस्तों, कि देखो रहा हूं भी आ रहा है, रहा, रही, रहे है भी आ रहा है, रहे हैं भी आ रहा है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमको समझने के लिए मिल रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन हजारों सेंटेंस आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर। अब दे के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं, तीसरा सेंटेंस बताता हूं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों, पहले सेंटेंस में मैंने यहां पर एम का इस्तेमाल किया था, इसमें मैंने एम का इस्तेमाल किया था, फिर इसमें मैंने इस का इस्तेमाल, यहां मैंने एम का इस्तेमाल किया था, यहां पे मैंने इस का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पे मैं जो है आर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल का है ना, प्लूरल का है, मतलब जमा का है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ हम जो है आर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें दे क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग के अंदर प्ले जो हो गया हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस आईएनजी हो गया, और क्रिकेट जो हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए मैं एक एक सेंटेंस को फार्मूले के तहत, स्ट्रक्चर के, फार्मूला और स्ट्रक्चर एक ही है, उसके तहत बता रहा हूँ, उसकी पहचान भी आपको बता रहा हूँ, उसका मतलब भी बता रहा हूं। अगर इस तरीके से हम एक एक टेंस को समझ लेंगे तो आने वाले टेंसेस में आपको, आप खुद से जवाब देंगे कि सर ये टेंस है, ये सर ये टेंस है, ये आप खुद ही पहचान बताएंगे। मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे क्वेश्चन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर मैं एक्शन बताता हूं, एक्शन कौन सा है। सर्कल को जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस कंसीडर किया है, राइट साइड ऑफ सर्कल को हमने फ्यूचर कंसीडर किया है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ सर्कल को हमने जो है पास्ट कंसीडर किया है।
ये साइड लेफ्ट साइड जो है पास्ट टेंस है, राइट साइड जो है फ्यूचर टेंस है, बीच में जो है वो प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए यहाँ पे एक्शन क्या है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट खेल रहे थे क्या? नहीं ना, वो क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। तो मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट टेंस यहाँ पर नहीं है। वो क्रिकेट खेलेंगे वो भी नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर भी। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया इसका टाइमलाइन, इस सेंटेंस का, इस टेंस का, कि दिस इज, अब हमने चूंकि आईएनजी भी लगाया है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आईएनजी जब हम लगाते हैं तो ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। आया समझ में दोस्तों? देखिए तीनों टाइप की मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया सेंटेंस को। अब इसकी हम तीसरी टाइप लेते हैं, इसके तीसरे भाई से मिलते हैं, है ना। जैसे हम एक पूरी फैमिली के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, इट इज वी आर नोइंग अबाउट द फैमिली ऑफ द टेंसेस। सो फर्स्ट The time थ्री is going सन्स to वी over. हैव अंडरस्टैंड। सर व्हाट इज टाइम? Sir, we have only 3 minutes remaining. 3 minutes remaining. Oh my God. Okay, friends. Okay, friends. Now मैं आपको शॉर्टकट में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वो मुझको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये दो टेंसेस मैंने आपको बताया अभी। टाइम वेरी शॉर्ट, क्योंकि 40-45 मिनट में ये टेंसेस का पूरा सेगमेंट इम्पॉसिबल है आई थिंक हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके पूरे सेगमेंट बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको इन दो टेंसेस के बारे में कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन करना है, कोई डाउट है आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर बच्चों को बोलिए कि दे कैन आस्क द क्वेश्चन। एनीबॉडी फ्रेंड्स? दोस्तों, if you have any question, any confusion regarding any tense, there are 12 tenses, 12 siblings, but due to the short time we are unable to explain all the tenses. I'm sorry for that, but today we have seen in detail whatever we have seen here. So you can ask me any question about 12 tenses. I hope you have cleared all these conditions. Yes, anybody? सर वर्ब हमेशा बीच में आता है ना, जैसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यस बेटा, यस बेटा, देखो उसका यूनिवर्सल फार्मूला बताता हूं मैं आपको कि यूनिवर्सल फार्मूला जो होता है ना सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले को अगर आप पकड़ लेंगे ना दोस्तों तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। वर्ब जो है हमेशा मिडल में आता है इंग्लिश में, है ना। जैसे उर्दू में देखिए यहाँ पे बाद में आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, है ना। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आता है और थर्ड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ये यूनिवर्सल फार्मूला है इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको समझ लीजिए, हर सेंटेंस आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को आप पकड़ के चलिए और हजारों लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्त। और कोई मेरा दोस्त और मेरी बहन कोई क्वेश्चन करना चाहता है? और कोई डाउट? सर पूछो बच्चों, आपके माइक अनम्यूट किए हैं। कोई भी डाउट आपके मन में टेंसेस के ताल्लुक से दोस्तों, 12 टेंसेस के ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं दोस्तों। कैन यू आस्क क्वेश्चन सर? यस माय डियर सिस्टर, बोलिए। सर आई के साथ एम को क्यों यूज करते हैं? आई के साथ एम क्यों यूज करते हैं मेरी बहन? आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना। जब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एम का ही इस्तेमाल होता है। आई के साथ इज का इस्तेमाल नहीं होता है, आई के साथ आर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आर देखिए प्लूरल हो जाता है, आर प्लूरल के साथ आता है ना। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ एम का ही इस्तेमाल होता है। समझ में आया बहन?
यस, बट सर जैसे यू है हाँ, तो यू के साथ आर का क्यों यूज करते हैं? यू के साथ आर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम वन टू वन अगर बात कर रहे हैं तो वो वहां पर हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब वो उसको इनविजिबल के तौर पे यूज करते हैं तो उसको वहां पे हम प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं। तो यू के साथ जो है हमेशा आर ही आता है, या पास्ट टेंस में अगर हम उसको यूज करेंगे तो यू के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, WERE, हाँ, है ना। प्रेजेंट टेंस में आर का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट टेंस में वर का इस्तेमाल करेंगे। सर थैंक यू सर। और कोई सवाल? सर यस बेटा। सर मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो आम खा रही है, इसमें कौन सा टेंस यूज होया? मैं आम खा रहा हूं, इसमें बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आया है। देखिए मैंने आपको पहचान बताया ना, जिसमें भी सेंटेंस में रहा, रही, रहे आ जाएगा तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा या प्रोग्रेसिव टेंस आ जाएगा, है ना। वो आम खा रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि वो आम खा रहा था, है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर था आ गया। लेकिन वो टेंस में भी बताने वाला था, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से नहीं बता सका। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस में वो आम खा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा है। अगर वो आम खा रहा था, पास्ट टेंस का हो जाता है, था लग गया ना, था, थी, थे, तो वो हो जाएगा ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। ओके दोस्त। और मेरा कोई भाई, कोई बहन? कोई भी डाउट आपको टेंसेस के ताल्लुक से आप पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ सर। इंग्लिश के साथ साथ मैंने उर्दू का भी इस्तेमाल किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाथ उठाकर बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? शाबाश। और कोई सवाल? पहला यहाँ खत्म होता है। हम 8:55 को दूसरे लेक्चर के लिए मिलेंगे, तब तक आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू। Here I conclude my lecture. I finish my lecture. Thank you very much. Bye, sir.